हेलो स्टूडेंट, टीवी स्कूल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10 ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ABC। और ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੇ। मतलब ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ? एक्यूट एंगल्स ने। सपोज अगर मैं A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ P। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ B, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ B। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਸੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ H। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਆਹ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ एक्यूट एंगल ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ एक्यूट एंगल ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਪੜੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਾਂ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਾਈਨ ਸੀ, ਕੋਸਾਈਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ SIN। cos ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਸਾਈਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ cos। ਸੀਕੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ sec। ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ tan। ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ cot। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cosec। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ। cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਸੀਕੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। tan ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। cot ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ एक्यूट ਐਂਗਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ एक्यूट ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ एक्यूट ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਈਨ। ਜੇ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ cos। ਜੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ sec। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ tan। ਦੈਨ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ cot। ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਅਪੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cosec। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਡਿਤ ਭਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਭੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ। S stands for sin, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। C ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ cos, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਔਰ tan ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਐਟ Q PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5, find sin P cos P ਤੇ tan P। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ PQR, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ PQR, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ Q 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। मतलब वो ट्राइंगल इस तरीके ना बनूंगा, आवे P एवे Q और एवे R। आ एंगल 90 डिग्री। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ? ਇੱਕ एक्यूट एंगल P ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ एक्यूट एंगल ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ P। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੇਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ B। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ H। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
तो पाइथागोरस थ्योरम की बोलती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अपन नु गिवन किया देखो PQ दी वैल्यू 5 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, तो मैं इनकी जगह 5 लिख देना। हुन हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने कोल PR, तो PR दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 5, तो मैं लिखूंगा 5 दा स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है अपने कोल RQ, तो मैं लिख देता RQ दा स्क्वायर। हुन सानू पता है 5 दा स्क्वायर तो हो गया 25, RQ इधर ले आने आ गया PR दा स्क्वायर माइनस RQ दा स्क्वायर, तो मेरे को PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अच्छा आ चीज़ की बन गई, अपन एक आइडेंटिटी पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो किंदे कोल होंदी है A प्लस B नाल होंदा है A माइनस B। तो देखो सेम चीज़ ये है कि ਤੁਹਾਡਾ A स्क्वायर और आ की है B स्क्वायर, तो ये किंदे कोल होगा A प्लस B ਦੇ इक्वल नाल मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ A माइनस B, और ये किंदे कोल है 25 ਦੇ। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PR plus QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 25 ਲਿਖ ਦੇਣਾ PR plus QR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ PR minus QR is equal to 25, ਤਾਂ 25 ਨਾਲ 25 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, तो मेरे को PR minus QR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। तो हम अपने को दो इक्वेशन बन गया, देखो केड़ी केड़ी इक्वेशन बनी है, एक है PR प्लस QR जो कि है 25, और एक मेरे को हुने बनी है की बनी है PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। तो दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को कितना सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं एलिमिनेशन मेथड की कर रहा है इन्हां दोनों को कर देना सिंपली ऐड। अगर मैं दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो देखो प्लस QR और माइनस QR तक कटिया गया, PR और PR ऐड होकर की बन गया 2PR, तो 2PR की वैल्यू कितनी आ गई 26, तो इत्थों दी PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, क्योंकि 26 नु 2 नाल डिवाइड करोगे कितना आ जाऊगा 13। हुन मैं PR माइनस QR इक्वल टू 1 दे विच आ PR की वैल्यू 13 पुट कर देना, जदों मैं 13 पुट करूंगा इत्थे आ जाऊगा 13 माइनस QR इज इक्वल टू 1, तो इत्थों दी माइनस QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 13, जो कि आ जाएगी 1 विचों 13 कटूगा तो प्लस माइनस, माइनस साइन किंदा आंदा वड्डे वाले दा, तो वड्डे वाले अगे केड़ा साइन पे नेगेटिव, तो इहदा आंसर की आ जाएगा -12, नाल की पे माइनस QR नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो साडे कोल QR कितना आ गया 12। हुण देखो मेरे कोल एक साइड QR दी भी निकल आई तो एक साडे कोल PR भी आ गया, PR की वैल्यू आई है 13, तो मैं इत्थे लिख देना PR की वैल्यू 13, और QR की वैल्यू कितनी आई है 12, तो मैं इत्थे लिख दिता 12। हुण आपां नूं कड्ढण वास्ते की बोलिया है, सानू कड्ढण वास्ते बोलिया है sin P कड्ढना है, cos P कड्ढना है ते नाल की कड्ढना है tan P। तो आपां कड्ढदे हां sin P, sin P क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना अपने कोल 12 और बेस कितना सी साडे कोल 5। फिर की कड्ढना आपां नूं cos P, तो cos P की हुंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपने कोल की है 5 और हाइपोटेन्यूज कितनी अपने कोल 13। फिर अपन नाल की करना है tan P, तो tan P की हुंदा सी अपने कोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना साडे कोल 12, बेस कितना साडे कोल 5, तो आ साडे आंसर आ गए। ठीक है जी, आपां की कीता सीगा, सानू बोलिया सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जिंदे विच Q 90 डिग्री है, असी बना लिता। फिर मैंने पता सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन्ने वास्ते करनी है P वास्ते, इसदा मतलब मैं केड़ा एक्यूट एंगल कंसीडर करना है P कंसीडर करना है, P दे बिल्कुल सामने की होंदा है परपेंडिकुलर, नाल होगा बेस और यह होगा हाइपोटेन्यूज। फिर मैं लाई पाइथागोरस थ्योरम, उथों दी एक इक्वेशन बन गई PR माइनस QR इक्वल टू 1। एक इक्वेशन सानू गिवन सी PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। दो इक्वेशन जो दित्तियां उन्होंने आपां लीनियर इक्वेशन किवें सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मैथड दे नाल, या दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हो या सबट्रैक्ट। मैं इन्होंने की किया ऐड, तो मेरे को PR की वैल्यू आ गई। फिर आ वाली PR की वैल्यू भावें तुसीं इत्थे पुट कर दो, भावें आ वाली इक्वेशन विच पुट कर दो, तुहाडे कोल किहड़ी वैल्यू आ जाएगी QR की। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 12, मैं सारी उत्थे लिख दी, QR की जगह लिख दिता 12 और PR की जगह आपां जिहड़ी वैल्यू आई सी 13 वो लिख दी। फिर आपां नूं कढना की सी sin P कढना सी, sin P की हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ रहा परपेंडिकुलर आ रहा हाइपोटेन्यूज।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਥੱਲੇ 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ cos, cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 13। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ tan ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਔਰ ਬੇਸ ਸੀ 5। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ एक्यूट एंगल P ਵਾਸਤੇ। सो अगला क्वेश्चन बिल्कुल उदा ਦਾ ਹੀ ਹੈ बट थोड़ा ਜਿਹਾ स्टेटमेंट ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। देखो की लिखा है इन अ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP is equal to 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 सेंटीमीटर। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ sin Q ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ cos Q ਕੱਢਣਾ ਹੈ। अगेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं इस साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता की बोला ने इट इज राइट एंगल एट P तब ए रहा P ट्रायंगल का नाम की है इट इज OPQ तब मैं नाम देता OPQ। हुण आपां नूं केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कढनी है sin Q ते cos Q तो केड़ा एक्यूट एंगल चाहिदा सानू Q वाला ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ एक्यूट एंगल है सानू पता है एक्यूट एंगल ਦੇ बिल्कुल सामने वाली साइड की हुंदी सी परपेंडिकुलर ਆਪਾਂ शॉर्ट फॉर्म यूज करांगे P नाल वाली साइड बेस शॉर्ट फॉर्म B तो सब तो लॉन्गेस्ट साइड की होती है हाइपोटेन्यूज शॉर्ट फॉर्म H। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ OP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OQ ਹੈ OQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PQ PO ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ 7 ਪਲੱਸ PQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਆ PQ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਨੇ ਆ OQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ PQ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 49। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫੇਰ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ a plus b a minus b ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ OQ plus PQ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ OQ minus PQ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ OQ minus PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ OQ plus PQ is equal to 49। अब 1 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 49 क्योंकि 49 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 49। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ OQ PQ 49 ਔਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ OQ PQ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ OQ PQ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 और एक मेरे को आई है OQ plus PQ की वैल्यू 49। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 50 ਕਿਉਂਕਿ 49 plus 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 50 PQ minus OQ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ OQ plus OQ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 times OQ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ OQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 50 divided by 2 ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25। ठीक है। फिर आ वाली वैल्यू ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ OQ PQ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ OQ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 25 PQ 1 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 25 ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ 1 25 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 25 ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ 25 ਚੋਂ ਅੱਗੇ 24 ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ PQ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ OQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 25 ਔਰ PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 24। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ PQ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 24 ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ sin Q और एक करनी है cos Q। ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर कितना अपना इथे एंगल तो बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर तो वो 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25।
ठीक है। cos की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना साडे कोल 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है साडे कोल 25, ता दो वैल्यू साडा की है आंसर। ठीक है जी। अगेन सानू दिता होया सी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक इक्वेशन कड्डी, दूजी इक्वेशन नाल ओनू सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड, दो वैल्यूज निकल आईयां, फटाफट उस ट्रायंगल विच मार्क कर दित्तियां। सानू कड्डना सी sin क्यू जो कि होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर दी वैल्यू कितनी है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 और जेड़ा cos की होंदा है वो की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। सो ये दो आंसर आ गए साडे, क्योंकि सानू कड्डण वास्ते की बोलिया सी sin क्यू ते cos क्यू, ਆਪਾਂ दोनों कढ दिते। तो हुण ਆਪਾਂ एक ट्रायंगल दी थ्योरम पढ़ने आ जो कि वैसे तुसीं पढ़ी होनी है 6th चैप्टर दे विच, तुहाडी क्लास 10th दी थ्योरम है। एक बार मैं स्टेटमेंट तुहानू रिवाइज करा देना कि हैगी है, इफ इन अ टू ट्रायंगल if the side of one triangle is proportional to the side of other triangle then their corresponding angles are equal, hence the triangle are similar। इस वाले रूल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ SSS सिमिलैरिटी। ਇਹਦਾ मतलब देखो की है, सपोज मैं लिखदा वां दो ट्रायंगल है साडे कोल, एक ट्रायंगल है ABC और दूजा ट्रायंगल है अपने कोल PQR। PQR ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤੇ, ਦੋ ट्रायंगल लिते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, AB अपॉन ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ PQ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ BC और ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦੇ ਆ QR ਦੇ ਨਾਲ, BC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦੇ ਆ QR ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ AC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਕਦੇ ਆ PR ਦੇ ਨਾਲ। उन्होंने की बोलिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, मतलब आ चीज सानू गिवन है। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੇ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ मतलब AB अपॉन PQ ओवर BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर साइड प्रोपोर्शनल ने तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, एंगल P ਦੇ इक्वल, मतलब आ वाला एंगल ਦੇ इक्वल होगा। एंगल B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एंगल Q ਦੇ इक्वल होगा। एंगल B ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ, एंगल Q ਦੇ इक्वल होगा। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ एंगल C ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ, एंगल R ਦੇ इक्वल होगा। एंगल C ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, एंगल R ਦੇ इक्वल होगा। पहली रिजल्ट ए बनूगा। ਤੇ दूसरा रिजल्ट ਕੀ अपने ਕੋਲ कि ट्रायंगल की हो जाओगे, सिमिलर हो जाओगे, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR दे। एक बार दोबारा तो रिपीट करदा, बोलिया गया कि साइड्स की रेशो की है, प्रोपोर्शनल है, तो साइड की रेशो जो इक्वल हैगी है तो दोनों साइड्स दे कोरस्पोंडिंग एंगल की हो गए, इक्वल हो गए। मतलब तुहाडा एंगल A इस हिसाब नाल एंगल P दे इक्वल है, एंगल B एंगल Q दे इक्वल है, एंगल C एंगल R दे इक्वल है। तो दूसरा रिजल्ट की है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आ वाले रूल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ SSS सिमिलैरिटी, मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी। ਹੁਣ ਇਹੀ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, if B and Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, prove that angle B is equal to angle Q। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, sin B sin Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, प्रूव की करना एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सानू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने लिए लगती है कि एक्यूट एंगल ही लगती है। पहला मतलब एक एक्यूट एंगल B है तो दूसरा एक्यूट एंगल की है Q। ਆਪਾਂ दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल है PQR जिंदे विच केड़ा एक्यूट एंगल है Q है और ਆਪਾਂ सपोज कर लेने R 90 डिग्री ते है, और दूसरा ट्रायंगल ਅਸੀਂ मान लेने ABC है जिंदे विच B एक एक्यूट एंगल है। सानू पता है जो Q एक्यूट एंगल है तो Q दे सामने वाली जिहड़ी साइड होएगी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बोलोगे परपेंडिकुलर, नाल वाली साइड बेस ते बिल्कुल लॉन्गेस्ट साइड की होएगी हाइपोटेन्यूज। सेम तरीके नाल उत्थे भी अगर B एक एक्यूट एंगल है तो ਉਹਦੇ बिल्कुल सामने होगा परपेंडिकुलर, आ होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ गिवन की है, ਸਾਨੂੰ गिवन है sin B किंदे इक्वल है, sin Q दे इक्वल। जे sin B sin Q दे इक्वल है ਇਹਦਾ मतलब इनदी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दी रेशियो उनदी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दी रेशियो दे इक्वल है।
तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, क्योंकि साइन सानू पता की होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना इत्थे पी आर, जे मैं क्यू के लिए लिख रहा है तो इत्थे लिखूंगा पी आर, और हाइपोटेन्यूज देखो कितनी अपने कोल पी क्यू। सेम तरीके नाल इत्थे बी अगर एक्यूट एंगल ले रहे हो तो साइन की होंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है ए सी और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी। तो मैं इत्थे लिख देता ए सी अपॉन ए बी। तो आ चीज़ सानू गिवन है, इनू आपां इक्वेशन नंबर 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है वो थ्योरम कदों वैलिड है, अगर सारी साइड्स की रेशो की आवे इक्वल होवे ताकि होगा एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल के होगा सिमिलर होगा। तो अपने को दो साइड्स की रेशो तो इक्वल है। केड़ी साइड्स की रेशो इक्वल है, एक तो आ वाली साइड और एक आ वाली साइड, एक आ वाली साइड और एक आ वाली। केड़ी वाली साइड की रेशो नहीं दिती हुई वो सानू क्यू आर वाली साइड की रेशो नहीं दिती हुई। तो आप क्यू आर वाली साइड की रेशो पाइथागोरस थ्योरम नाल करते हैं। तो देखो सानू पता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, क्योंकि सानू पता है एंगल आर की है 90 डिग्री है। जो भी एक एंगल 90 डिग्री है तो तुसी केड़ी थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर, मतलब इत्थे हाइपोटेन्यूज की है क्यूपी। तो क्यूपी दा स्क्वायर किंदे कोल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अपन केड़ी वाली साइड दी रेशो चाहिए है क्यू आर, तो मैं तो क्यू आर दी वैल्यू करना। तो क्यू आर स्क्वायर दी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर। सेम तरीके नाल मैं उत्थे भी ट्रायंगल ही थ्योरम लगाना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने पता एंगल सी की है 90 डिग्री है। तो इत्थे भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, वो की बोलेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उत्थे हाइपोटेन्यूज कितना ए बी इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना साडे कोल बी सी और परपेंडिकुलर कितना साडे कोल ए सी। सानू केड़ी वाली साइड दी रेशो चाहिए है, सानू बी सी वाले साइड दे कॉरस्पॉन्डिंग रेशो चाहिए। तो मैं इत्थों बी सी दी वैल्यू करदा। तो इत्थों देखो बी सी स्क्वायर किंदे कोल आ जाऊगा, वो आ जाऊगा अपने कोल ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इनू आपां चकदे इक्वेशन 1 लिखते हैं, इनू आपां 2 लिख देने क्योंकि मैं 1 लिखा है, और इनू आपां चकदे आ 3। हुण आपां नू आ दो साइड्स की रेशो चाहिए है, तो मैं दो साइड्स की रेशो चकदा की करदा वा 2:3 चकदा। जे 2:3 चकूंगा मतलब क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, या तुसी 3:2 भी चक सकते हो, मैं 3:2 चक लेना। तो मतलब ए वाली साइड ऊपर, क्योंकि देखो इत्थे हमेशा आपां ए सी अपॉन ए बी लिखा है, पी आर अपॉन पी क्यू तुहाडी मर्जी है, चाहे तुसी इहदी रेशो आ ले लो चाहे इहदी रेशो आ ले लो, मतलब सेम ही आऊगा। तो आपां रेशो चकदे आ 3:2, क्योंकि मैंने पता है जो भी ट्रायंगल सिमिलर करना है साडे कोल तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन आनी चाहिए है। साडे कोल दो साइड की प्रोपोर्शन तो दी है, पर थर्ड साइड मतलब क्यू आर और बी सी की रेशो नहीं दी सी, तो मैं बी सी रेशो क्यू आर चकनी है। बी सी की वैल्यू आ रही, क्यू आर की वैल्यू आ रही अपने कोल, तो आप चक रहे हैं बी सी रेशो क्यू आर। देखो बी सी की जगह मैं की लिख सकता वा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और थले इनकी जगह आप केड़ी रेशो लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, सिर्फ आ वैल्यूज आप चक के इत्थे पुट कीतियां ने। हुण आपां नूं गिवन देखो की है, आपां दिता है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अपनी जिहड़ी सब तो पहली वाली इक्वेशन सीगी मैं वो वाली चक्की है। पहली वाली इक्वेशन आपां आई लिखी सी ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, वही चक्की। इहनूं थोड़ा जिहा रीअरेंज करते हैं। मैं की करता ए बी उत्ते चक के ले आना, पी आर नूं थल्ले। जो मैं इन्होंने इंटरचेंज करूँगा कोई फर्क तो नहीं पेगा, रेशो इक्वल है, जो ऊपर थल्ले भी कर दोगे तां भी वो चीज़ सेम ही रहूगी। तो मैं इत्थे लिख दिता ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी ऊपर चले गया और थल्ले आ गया पी क्यू। अच्छा जे सारियां दोनों रेशो इक्वल है तो किसी वैल्यू दे इक्वल आन गया, मैं मान लेना के दे इक्वल है। असी केड़ी इक्वेशन चक्की है, असी रीअरेंज किया 1 नूं। असी फर्स्ट इक्वेशन ही थोड़ा जिहा एडजस्ट करके लिखा है। इत्थों दी मेरे कोल की मतलब बन गया कि ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू किंदे इक्वल है, के दे, ते ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी किंदे इक्वल है, के दे। आप इस इक्वेशन को लिख देंगे, इनू मैं नाम दिता 1, इनू 2, इनू 3, तो इस इक्वेशन को असी 4th नाम दे दें। तो अपने को देखो इत्थों दी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई के पी आर, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल के पी क्यू। हुण मैं ए वाली वैल्यूज चक के कित्थे पुट कर दूंगा, तो असीं की कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन रेशियो।
देखो अपने को रेशो की सी BC अपॉन QR। देखो मैं AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ KPR और AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ KPQ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर थल्ले स्क्वायर रूट और थल्ले की है स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। देखो इथों दी K स्क्वायर कॉमन निकल के K बाहर निकल आऊगा, अंदर की आ गया PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर और थल्ले भी की है स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। सिर्फ मैं दोनों चो K स्क्वायर कॉमन कट के बाहर कट दिता। स्क्वायर रूट तो जो K स्क्वायर कॉमन निकलूगा तो बाहर की आ जाऊगा K, अपने को आ रेशो कटेगी तो अपने को BC अपॉन QR भी कितने को आ गया K दे को आ गया। ऐसी इक्वेशन ਅਸੀਂ बोल देने हैं 5। ਹੁਣ देखो फोर्थ इक्वेशन की सी AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, वो भी K दे कोल है। इथों दी अपने को BC अपॉन QR भी की आ गया K दे कोल आ गया। अगर आ भी K दे कोल है आ भी K दे कोल है ना, मतलब फोर्थ और फिफ्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। जो मैंने पता है कि आ भी वैल्यू K दे इक्वल है आ भी K दे इक्वल है, तो इहदा मतलब साडे कोल क्या आ गई BC अपॉन QR, किंदे कोल आ गई AC अपॉन PR, किंदे कोल आ गई AB अपॉन PQ। तो अपनी थ्योरम की कहती सी कि जो भी साइड्स की रेशो इक्वल आती है तो एंगल्स की हो जाते हैं इक्वल, तो साइड अपने को ट्राइंगल की हो जाता है सिमिलर बाय SS रूल। तो इहदा मतलब इत्थे आपां थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप की कहांगे देयरफॉर साडे कोल जिहड़ा ट्राइंगल है BCA किंदे सिमिलर आ गया ट्राइंगल QRP दे बाय केड़ा रूल SSS रूल। तो इत्थों दी अपने कोल बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नाल की लग गया कि एंगल B किंदे कोल है एंगल Q। सो अपने कोल थ्योरम लगी। थ्योरम की कहती सी कि साइड्स दी रेशो जे इक्वल होवे तो ट्राइंगल की हो जाता सिमिलर, तो अपने को एंगल की आ जाते हैं इक्वल। तो वही थ्योरम लगा के अपने को B किंदे को आ गया एंगल Q दे। तो अपन बोलिया सीगा एक्यूट एंगल B और एक्यूट एंगल Q, क्योंकि सानू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक्यूट एंगल ही लगती है। मैं एक्यूट एंगल एक B बना लिया, एक Q बना लिया, एक ट्राइंगल ही। अपन बोलिया गया सीगा कि साइड्स की रेशियो इक्वल है, क्यों? क्योंकि साइन B किंदे इक्वल है साइन Q, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल है ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਿਲਰ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ cos ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो एक नैक्सट क्वेश्चन आप होर ट्राई करते हैं की है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1 प्रूव करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1 आंदा कि नहीं आंदा। तो अपन बोला गया है राइट एंगल ट्राइंगल एट B, आप फटाफट एक ट्राइंगल बना लेने ABC एक ट्राइंगल बोलिया उन्हें ABC, उन्हें बोलिया राइट एंगल एट B तो 90 डिग्री है। अपन tan A इक्वल टू 1 है, मतलब एक्यूट एंगल की है A है, आप एक्यूट एंगल मार्क कर दिता। सानू पता है एक्यूट एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नाल वाली साइड बेस और आ वाली लॉन्गेस्ट साइड की होंदी है हाइपोटेन्यूज होंदी है। सानू गिवन की है, सानू गिवन है tan A इक्वल टू 1। tan थीटा किंदे कोल होंदा सी, ओ होंदा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्चुअली जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे इक्वल है तो साडे कोल परपेंडिकुलर जो कि है AC CB है ना, मतलब मैं लिख दांगा BC अपॉन बेस कितना है AB। सो साडे कोल इहदा मतलब BC अपॉन AB दी वैल्यू कितनी हैगी है साडे कोल 1 है ना, मतलब आ भी कुछ K होएगी आ भी K होगी, क्योंकि सानू पता है जो साइड्स रेशियो विच है तो ना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कुछ मल्टीपल होएगी तो दूसरी वाली वैल्यू भी की होएगी कुछ मल्टीपल ही होगी। तो आपां नूं BC दी वैल्यू लिख दिंदे आपां इत्थे 1 के और आपां इत्थों AB दी वैल्यू देखी वो भी की आ रही है 1 की आ रही है। तो सानू पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, इत्थे की लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर किंदे इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना अपने कोल 1 के, उनका स्क्वायर करना है प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है 1 के, उनका भी की करना है स्क्वायर।
1k ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ k ਸਕੁਆਇਰ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ 1k ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ k ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਕ k ਸਕੁਆਇਰ ਦੂਜੇ k ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2k ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2k ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ k ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ k। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2k। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2k। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 2 sin a cos a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 1 ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਹੀ ਲਿਖਿਆ। sin a ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ BC ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ रहा a ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਬੇਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਔਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ AC। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ BC ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1k। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ 1k। AC ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2k। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2k। AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 1k और इतनी जगह आप लिख देता स्क्वायर रूट ऑफ 2k। ठीक है जी। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है sin a cos a। sin a की होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साडे कोल सी BC और हाइपोटेन्यूज सी साडे कोल AC। मैं sin a की जगह यही लिखा है। cos a की होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना अपने कोल AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC वो लिखी। उन्होंने दी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। सानू पता है a k और a k कटिया गया, आ k और आ k भी कटिया गया। ऐसा मतलब आ चीज़ कितने इक्वल चल रही है 2 टाइम्स 1/√2 इनटू 1/√2। सानू पता है एक √2 दूजे √2 नाल जदों मल्टीप्लाई होगा, एक √2 और दूजा √2 मल्टीप्लाई होगा कि आ जाएगा 2। 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 1। बाहर की पे आया है 2, 2 नाल 2 कैंसिल हो गया। ता चीज़ की आ गई 1 आ गई जो कि एक्चुअली की अपने को राइट हैंड साइड। तो है ना मतलब साडे को लैफ्ट हैंड साइड किंदे कोल आ रही है राइट हैंड साइड दे कोल आ रही है। तो इस तरीके नाल तुसी बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। अपना एक्सरसाइज आज खत्म है।